یہ ہے وقت میڈیا۔ ACFC یعنی اسلم چشتی فرینڈ سرکل پونے کے زیر اہتمام یوم جمہوریہ کے موقع پر 26 جنوری 2025 کو مہاراشٹر کے شہر پونے میں جشن منور پیر بھائی کے عنوان سے ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے ACFC پونے یعنی اسلم چشتی فرینڈ سرکل پونے کے بانی مہمان نواز شخصیت عالمی شہرت یافتہ شاعر اسلم چشتی، جو ACFC پونے کے ذریعے اردو ادب کے فروغ دینے میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ ممتاز گرمانی نے کہا تھا کہ اپنی ہر بات زمانے سے چھپانی پڑی تھی، پھر بھی جس آنکھ میں دیکھا تو کہانی پڑی تھی۔ میں نے کچھ رنگ چرائے تھے کسی تتلی کے اور پھر عمر حفاظت میں بتانی پڑی تھی۔ میں نے کچھ رنگ چرائے تھے کسی تتلی کے اور پھر عمر حفاظت میں بتانی پڑی تھی۔ آئیے ایک ایسی شاعرہ کے حضور چلتے ہیں کہ جن کی زندگی کا بیشتر حصہ بچے اور بچیوں کی تعلیم میں، ان کے درس و تدریس میں گزرا ہے، اور بہت سارے بچیوں اور بچوں نے ان کے زیر سایہ رہ کر زندگی کے پیچ دار وادیوں سے آسانی سے گزرنے کی ٹریننگ لی ہے۔ میں اس وقت ایک بہت بڑی شاعرہ، ادیبہ، مصنفہ اور مشاعروں کی بہت اچھی ناظم بھی ہیں، وہ محترمہ ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال فرمائیں۔ وہ مائک پر تشریف لا رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کئی بار میری حاضری ہوئی ہے اور ہمیشہ بڑی محبت ملی ہے۔ بہت مبارکباد صاحب جشن کو بھی اور اسلم چشتی صاحب کو بھی۔ 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کے موقع سے میری خواہش تھی کہ کچھ پڑھوں، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے تو سیدھا ایک مطلع اور چند اشعار مطلع سماعت کیجیے گا۔ صدر محترم کی اجازت۔ دل کا قصہ نہ کبھی بیچ میں چھوڑا جائے، دل کا قصہ نہ کبھی بیچ میں چھوڑا جائے، یہ ورق ایسا نہیں ہے جسے موڑا جائے۔ دل کا قصہ نہ کبھی بیچ میں چھوڑا جائے، یہ ورق ایسا نہیں ہے جسے موڑا جائے۔ چاہے شیشہ ہو کھلونا ہو کہ دل ہو میرا، چاہے شیشہ ہو کھلونا ہو کہ دل ہو میرا، اس کی قسمت میں ہی لکھا ہے کہ توڑا جائے۔ چاہے شیشہ ہو کھلونا ہو کہ دل ہو میرا، اس کی قسمت میں ہی لکھا ہے کہ توڑا جائے۔ شعر سماعت کیجیے گا۔ اپنی دہلیز سے ہٹوا دیے پتھر اس نے، اپنی دہلیز سے ہٹوا دیے پتھر اس نے، میں پریشان ہوں کہ سر اب کہاں پھوڑا جائے۔ اپنی دہلیز سے ہٹوا دیے پتھر، اپنی دہلیز سے ہٹوا دیے پتھر اس نے، میں پریشان ہوں کہ سر اب کہاں پھوڑا جائے۔ وہ بھی پریشان تھا اسی لیے اس نے پتھر ہٹوائے۔ آپ زیادہ پریشان لگ رہے ہیں مجھ کو۔ تو ایک یہ شعر جو میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہی ہوں، اپنے ساتھ لے جائیے۔ بعد میں جوڑیں گے ہم ٹوٹے ہوئے جاموں صبح، بعد میں جوڑیں گے ہم ٹوٹے ہوئے جاموں صبح، پہلے ٹوٹے ہوئے ہر رشتے کو جوڑا جائے۔ بہت اچھے، بہت شکریہ، بہت عنایت۔ بعد میں جوڑیں گے ہم ٹوٹے ہوئے جاموں صبح، پہلے ٹوٹے ہوئے ہر رشتے کو جوڑا جائے۔ اور ایک مطلع اور 2-3 شعر اور میں آپ لوگوں کی نظر کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں، مطلع سماعت کیجیے گا۔ بہت اچھی۔ ہم لوگوں کے گھر پرانے حویلیاں، در و دیوار، ماں باپ بھی نہیں رہے، بہن بھائی نہیں رہے، کبھی جاتے ہیں وہاں پر تو بڑا تکلیف ہوتی ہے، تو وہی ایک زخم میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں، سماعت کیجیے گا۔ عطا کریں۔ نہ وہ کہانی نہ اب داستان باقی ہے، نہ وہ کہانی نہ اب داستان باقی ہے،
बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। क्या बात है, वाह। न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, माँ बाप बहन भाई सब, तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की। खड़े हैं दरो दीवार को देख रहे हैं, ये सब इमेजिन करने की चीजें हैं। न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आंखों में जान बाकी है। बहुत अच्छा है, वाह, ना वाह, कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आंखों में जान बाकी है। इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे, इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में। वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है। अच्छा है, वाह वाह, चले आते हैं कूचे में, बहुत अच्छा। वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है। मक्ता समात कीजिएगा। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो खानदान बाकी है। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो खानदान बाकी है। हमें नसीब था। मेरे घर से कुछ लोग आए हुए, तो मैं चाह रही हूँ कि उनकी फरमाइश पर एक मतलब चंद अशआर, और वो मैं अपना शेर आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि जिसने मेरी पहचान बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में। ज़रा मतलब समात कीजिएगा। 2-3 शेर इसके मैं सुनाकर आप लोगों की जहमत तमाम। मुझे ये जहमत तमाम कहना बहुत ही ख़राब लगता है। अगर शायरी जहमत है तो ना हम कह सकते हैं ना आप सुन सकते हैं, तो इसलिए हाँ, ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। घर से दुश्मन के खबर जब भी बुरी मिलती है, घर से दुश्मन के खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। इंसान की नफ्सियात है, क्या करें। लेकिन देखिए क्या होता है, लहलहाती है मोहब्बत की सुनहरी फसलें, मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है। लहलहाती है मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, उंगलियां खुद से समात कीजिएगा। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। उंगलियां खुद से तेरा उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती। बहुत अच्छे शेर है, क्या कहने। बहुत बहुत तेरा नाम लिखा। आपकी तारीफ, आप तो मेरे लिए तालियां होनी चाहिए थी। गजल का बहुत खूबसूरत शेर आप सबका। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा। देखिए मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा भी अपने आप को नहीं रोक सकी मोहब्बतों से नवाजने के लिए। वाह 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 वाह, क्या क्या उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। और एक सर मेरे मिजाज का शेर, ये खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। और मेरा मक्ता ये आप सभी खवातीन की, सभी बहनों की, बच्चियों की नज़्म है। इस मक्ते ने पूरी दुनिया में मेरी पहचान बनाई है। खाकसारी के लिए शाहों उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। और
मख्ता समात कीजिएगा। मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, शेर देखिए सर। जाओ मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। मायके जाऊं तो अब तक मैं बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये थी मोहतरमा डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा, जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ खूबसूरत अनकहे मौज़ूआत को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। मैं उन्हें बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ, चूँकि ये मुशायरे का मकसद ये रहा है कि इसे मंसूब किया गया आपकी अपनी मिट्टी के एक महज़्ज़ब तालीमी अदबी शख्सियत के नाम से हाली जनाब मुनव्वर पीर भाई साहब का जश्न से मौसूम किया गया, और इसकी सदारत फरमा रहे हैं आपकी अपनी इस ज़मीन के बहुत ही मारूफ आर्किटेक्चर आली जनाब मोहतरम ज़ुबैर रशीद शेख साहब, और इनकी सदारत की बरकतें हैं। मुशायरा अपनी पूरी कामयाबी के साथ अपनी बुलंदियों की तरफ चल रहा है। मुशायरों का एक मकसद होता है जिसे डॉक्टर साहिबा ने 2 मिसरों में बयान किया कि बाद में जोड़ेंगे हम टूटे हुए जामो सुबह, पहले टूटे हुए हर रिश्ते को जोड़ा जाए। ये हमारे मुशायरों का मकसद होता है। इस मंच से हम कोई ना कोई ऐसा मैसेज या पैगाम देना चाहते हैं जो आप लोगों का यहाँ पर आना सफल हो जाए। मैं चाहता ही नहीं मेरी झूठी शान रहे, तेरे मकान से ऊंचा मेरा मकान रहे, लड़ूंगा तुझसे मगर गालियां नहीं दूंगा, कोई तो फर्क तेरे मेरे दरमियान रहे। ये मुशायरों का एक मकसद होता है, एक मैसेज, एक पैगाम, जहां से यह हमारी तहजीबी दर्जगाह है मुशायरे का मंच। मैं आइए अब उस शायर को आपको ये था ACFC यानी असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल का एक शानदार मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन मेहताब के साथ मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए पुणे से।